Hello everyone. Yesterday we have seen about the RBCs and WBCs. Today we will see about the platelets. So there are three types of blood cells: RBCs, WBCs and platelets. So today we will see about the blood platelets. Now these blood platelets are nothing but these are the detached tips of giant cells. Means these are the detached tips of protoplasmic processes of giant cells. Now, giant cells means what? Giant cells are nothing but these are the megakaryotes. Megakaryotes. These megakaryotes are present in red bone marrow, and from these megakaryotes, the tips are detached, and the tips are called blood platelets. The count of blood platelets varies from 2 lakhs to 5 lakhs. ये 2 लाख से 5 लाख तक हो सकते हैं 1 cubic millimeter of blood में. Approximately we can say that blood platelets they are present near about 3 lakhs per cubic millimeter. Now the size of blood platelets is about 2 to 4 micrometer. Means they are very smaller. They are anucleated. ये बहुत स्मॉल रहते हैं, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है. ब्लड प्लेटलेट्स अगर देखा जाए तो उनका शेप अगर देखा जाए तो ये ओवल शेप और डिश शेप, यानी कि हायर वर्टिब्रेट्स में ये ओवल और डिश शेप रहते हैं, और लोअर वर्टिब्रेट्स में अगर देखा जाए तो ये ब्लड प्लेट स्पिंडल शेप रहते हैं. ये स्पिंडल शेप लोअर वर्टिब्रेट जो स्पिंडल शेप ब्लड प्लेटलेट जो रहते हैं लोअर वर्टिब्रेट्स में, इनको हम बोल सकते हैं थ्रोम्बोसाइट्स. तो थ्रोम्बोसाइट्स are found in the lower vertebrates and they are a spindle shaped in higher vertebrates, and we can say that in human they are oval shaped or they are disc shaped. Now this blood platelets lifespan, we can say that the lifespan of blood platelets is about 5 to 9 days. इनका lifespan 5 से 9 दिन तक होता है. Blood platelets their lifespan is 5 to 9 days, and these platelets they are very important for blood clotting or blood coagulation. Blood platelets release thromboplastin, and this thromboplastin plays an important role in the blood clotting. Blood platelet also release serotonin, and this serotonin is also important for constriction of blood vessels. Now these blood platelets, their main role is the blood clotting. So we will see about the blood clotting or blood coagulation. अभी clotting means what? Clotting means liquid form जो blood का रहता है वो solid form में, semi solid form में उसका conversion होता है, इसको हम बोल सकते हैं blood clotting. अभी blood clotting जरूरी है या नहीं है? When the blood circulates in the blood vessel, then blood clotting is not essential, because blood must be remain in the dilute form. But when we have any injury, at that time blood clotting is very essential. अगर blood clotting नहीं होता है तो हमारे बॉडी में जितना ब्लड है वो सब लॉस्ट हो जाएगा ब्लीडिंग की वजह से, तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे. सो ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट द अनड्यू लॉस ऑफ ब्लड. ब्लड क्लॉटिंग से ब्लड का लॉस जो है वो प्रिवेंट होता है. और दिस ब्लड क्लॉटिंग, नाउ दिस ब्लड क्लॉटिंग, वैसे ब्लड क्लॉटिंग में अगर देखा जाए तो इसमें 4 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे मैकेनिज्म क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग का. सो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन. डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन. अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का डेवलपमेंट होता है. अभी थ्रोम्बोप्लास्टिन का डेवलपमेंट कब होता है? व्हेन वी हैव एनी इंजुरी, एट दैट टाइम थ्रोम्बोप्लास्टिन इज डेवलप. ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये टिश्यू सेल से भी डेवलप होता है और ये प्लेटलेट से भी डेवलप होता है. जब ये टिश्यू सेल से डेवलप होगा इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोसेस, और जब ये प्लेटलेट से फॉर्म होगा इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोसेस. तो देखते हैं हम एक्सट्रिंसिक प्रोसेस के बारे में. सो एक्सट्रिंसिक पाथवे. सो दिस एक्सट्रिंसिक पाथवे occurs with the help of factors 6, 4, 5, 7 and 10. प्लाज्मा के नियर अबाउट 13 फैक्टर्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे इनकी लिस्ट दी है. जब आप
आपको टाइम मिले तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं. These are very important factors. The name and the factor is given in this table, following table. So ये जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर रहते हैं, ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर प्लाज्मा के यानी कि एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए जो फैक्टर लगते हैं वो लगते हैं 4, 5, 7 and 10. एंड प्लेटलेट से जब थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्म होगा तो उनको हम बोल सकते हैं इंट्रिंसिक प्रोसेस. अभी इंट्रिंसिक प्रोसेस और इंट्रिंसिक पाथवे, ये जो पाथवे रहता है इसमें प्लेटलेट्स के भी कोफैक्टर लगते हैं और प्लाज्मा के भी फैक्टर लगते हैं. अभी प्लेटलेट्स के कोफैक्टर कौन से होते हैं? प्लेटलेट कोफैक्टर 1, कोफैक्टर 2, कोफैक्टर 3 एंड कोफैक्टर 4. इनके भी 4 कोफैक्टर रहते हैं. ये प्लेटलेट्स के 4 कोफैक्टर, प्लाज्मा के 13 कोफैक्टर, ये सब फैक्टर मिलके फिर ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस कैरी ऑन करते हैं. तो ये हम देखेंगे कि कौन से रहते हैं यहाँ पे प्लाज्मा फैक्टर्स 4, 5, 9, 10, 11 एंड 12. तो इस तरह से थ्रोम्बोप्लास्टिन की डेवलपमेंट टिश्यू से होती है और प्लेटलेट से होती है. ये हमने फर्स्ट स्टेज में देखा. अभी हम सेकंड स्टेज की तरफ जाएंगे. इन सेकंड स्टेज हियर, now in the second stage prothrombin is converted into thrombin. We can say that it is active thrombin. अभी प्रोथ्रम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बिन में होने के लिए प्लाज्मा फैक्टर्स कौन कौन से लगते हैं यहाँ पे? 4, 5, 7 and 10 दिस प्लाज्मा फैक्टर. और ये प्लाज्मा फैक्टर के साथ यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयंस की भी जरूरी होती है. सो in the presence of calcium ions and in the presence of thromboplastin, prothrombin is converted into active thrombin. प्रोथ्रम्बिन का कन्वर्जन जो है वो एक्टिव थ्रोम्बिन में होता है. स्टेज थर्ड देखेंगे अभी हम यहाँ पे. नाउ द स्टेज थर्ड हियर, दिस इज द थर्ड स्टेज. फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन थ्रेड्स. नाउ दिस फाइब्रिनोजेन का कन्वर्जन के लिए देखो अभी फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 13 in both pathways. In both pathways means इसका मतलब यहाँ पे भी हमने in both pathways लिखा है. इसका मतलब क्या होता है? In both extrinsic pathway and intrinsic pathway. And here this fibrinogen is converted into fibrin threads in the presence of thrombin and in the presence of factor number 7 and factor number 13. तो इस तरह से फाइब्रिन थ्रेड्स फॉर्म होते हैं और ये फाइब्रिन थ्रेड्स फिर डेड WBCs, डेड RBCs के साथ मिलके एक क्लॉट तैयार करते हैं, एक सील तैयार करते हैं, जो सील पंक्चर ब्लड वेसल का ब्लड फ्लो स्टॉप कर दे. ओवरऑल अगर ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस देखा जाए तो इसमें हम 4 स्टेप कह सकते हैं. सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले प्रोथ्रम्बिन जो होगा वो प्रोथ्रम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू active thrombin in the presence of calcium ions. Active thrombin converts fibrinogen into fibrin threads and fibrin threads, dead RBCs, dead WBCs together form a clot. लेकिन इससे पहले क्या होता है? इससे पहले अगर देखा जाए तो एंजाइम प्रोथ्रम्बिनेज का फॉर्मेशन होता है. अभी प्रोथ्रम्बिनेज जो है वो प्रोथ्रम्बिनेज कौन फॉर्म करता है? प्रोथ्रम्बिनेज इज फॉर्म बाय थ्रोम्बोकाइनेज. थ्रोम्बोकाइनेज is important for formation of enzyme prothrombinase. अभी आप सोचेंगे एंजाइम प्रोथ्रम्बिनेज क्या करता है? एंजाइम प्रोथ्रम्बिनेज इनएक्टिव द इफेक्ट ऑफ हेपेरिन. जब अपनी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है उस टाइम ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखने का काम एंटीकोएगुलेंट्स करते हैं. बहुत से एंटीकोएगुलेंट्स रहते हैं अपनी बॉडी में, इसमें हेपेरिन इज वन ऑफ द एंटीकोएगुलेंट. सो ये हेपेरिन की एक्शन स्टॉप करने का काम जो है ये काम थ्रोम्बोकाइनेज करता है. और सो दिस थ्रोम्बोकाइनेज इज फॉर्म बाय प्रोथ्रम्बिनेज. नाउ सो दिस ब्लड क्लॉटिंग, इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीशन टाइम जो रहता है वो 3 से 8 मिनट तक का टाइम रहता है जो ब्लड क्लॉटिंग होते हैं. अभी ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया 13 फैक्टर्स में देखो. अभी फर्स्ट फैक्टर इज फाइब्रिनोजेन, सेकंड फैक्टर इज प्रोथ्रम्बिन, थर्ड फैक्टर हियर थ्रोम्बोप्लास्टिन, हियर दिस thromboplastin. Then fourth factor it is a calcium ion. Fifth factor it is a
प्रोएक्सिलरीन को लैबियल फैक्टर भी बोलते हैं। उसके बाद 6 फैक्टर जो रहता है उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल फैक्टर, इसको एक्सिलरीन भी बोलते हैं, हाइपोथेटिकल फैक्टर को एक्सिलरीन भी बोलते हैं। उसके बाद स्टेबल फैक्टर, फैक्टर नंबर 7 इज कॉल्ड स्टेबल फैक्टर, फैक्टर नंबर 8 इज कॉल्ड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। अभी एंटी हीमोफिलिक फैक्टर का मतलब क्या हुआ? एंटी मींस अपोजिट, हीमोफिलिक मींस हीमोफिलिया। यू नो व्हाट इज हीमोफिलिया? हीमोफिलिया इज द कंडीशन in which there is no clotting occur. ब्लड कंटिन्यूस फ्लो होता है, इनमें ब्लड क्लॉट होता ही नहीं है। अगर आगे हम देखेंगे एक लेसन में जहाँ पे हीमोफिलिया इज द हेरिडिटरी डिसऑर्डर। हीमोफिलिया ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर होने की वजह रहती है रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस पार्ट पे रिसेसिव जीन होने की वजह से ये हीमोफिलिया डिजीज होता है, लाइक दैट कलर ब्लाइंडनेस। इंग्लैंड में एक रॉयल सोसाइटी करके सोसाइटी है, इनमें ये डिसीज कॉमन है, हीमोफिलिया। तो ये फैक्टर नंबर जो 8 रहता है ये बहुत इसेंशियल रहता है क्लॉटिंग के लिए, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, मींस ये ब्लीडिंग रोकने का काम करता है। उसके बाद 9 फैक्टर रहता है प्लेटलेट कोफैक्टर, इसको हम बोल सकते हैं प्लेटलेट कोफैक्टर। 10 फैक्टर स्टावर्ड फैक्टर, देन 11 फैक्टर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 12 फैक्टर हेजिमेन फैक्टर, एंड 13 फैक्टर नंबर 13 इट इज द फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये फैक्टर आपको NEET के लिए बहुत इसेंशियल, नीट के एग्जाम के लिए बहुत इसेंशियल है फैक्टर। इनका रोल और उनका नाम आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए ये फैक्टर आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। नाउ सो these are the different factors। अभी कोएगुलेशन के बारे में हमने सोचा, अभी हमने देखा कि कोएगुलेशन इज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इट इज द प्रोसेस इन व्हिच द ब्लड लूजेस इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम्स सेमी सॉलिड जेली। ब्लड का लिक्विड फॉर्म का कन्वर्जन सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है और इस वजह से अपना बॉडी में जितना ब्लड है वो बाहर नहीं निकल जाता बिकॉज ऑफ द क्लॉटिंग। सो what do you mean by clot? क्लॉट का मतलब क्या होता है? क्लॉट का मतलब होता है थ्रम्बस। अभी थ्रम्बस मींस क्लॉट। अभी ये थ्रम्बस जब अपने ब्रेन के वेसल्स में बन जाता है तो इसको बोलते हैं सेफेलिक थ्रम्बस। कभी कभी देखो आप ब्रेन में क्लॉट हो जाते हैं और ब्रेन में क्लॉट होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्लॉट किधर भी हुआ तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अभी कोरोनरी आर्टरी में अब अगर देखेंगे आप, कोरोनरी आर्टरी में जब एक क्लॉट हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं कोरोनरी थ्रम्बस। तो कोरोनरी थ्रम्बस, सेफेलिक थ्रम्बस मींस दिस थ्रम्बस का मतलब होता है क्लॉट। और ये क्लॉट होने की वजह से अभी कोरोनरी आर्टरी अगर समझो हम देखेंगे इस तरह से कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे समझो ये क्लॉट हो गया। अगर ये आर्टरी में क्लॉट हो गया तो ब्लड आगे नहीं जा सकेगा और इसका टोटली प्रेशर हार्ट के ऊपर आएगा और फिर हार्ट अटैक होगा। सो दिस क्लॉट इट इज ऑलवेज प्रिवेंटेड बाय एंटीकोएगुलेंट। तो जब भी ब्लड का सर्कुलेशन अपने ब्लड वेसल थ्रू होगा उस टाइम पे क्लॉट नहीं होगा। ब्लड का सर्कुलेशन जब ब्लड वेसल में होगा तो उस टाइम पे क्लॉटिंग नहीं होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज if blood is remain in the liquid form, blood can able to perform its function। अभी इस तरह से हम ब्लड कॉम्पोजिशन के बारे में सब देख सकते हैं। अभी हमने आरबीसी देखे, डब्ल्यूबीसी देखे, प्लेटलेट देखे। अभी इसका कंपैरेटिव स्टडी कैसे किया जाए? सबसे पहले आपको सभी का परसेंटेज याद रखना होगा, कौन कितना रहता है। बाद में अभी समझो आरबीसी 52 lakhs, डब्ल्यूबीसी RBC is 52 lakhs in male, 47 lakhs in female. WBC is 5,000 to 9,000. Platelets present about 3 lakhs to 5 lakhs. तो ये परसेंटेज आपको कंपैरेटिवली याद रखना होगा। बाद में आपको देखना होगा डायमीटर क्या होता है। तो डायमीटर के बारे में सोचेंगे तो आरबीसी का डायमीटर देखा हमने नियर अबाउट 5 to 8 माइक्रोमीटर। अप्रोक्सीमेटली आरबीसी का डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोन। WBC का डायमीटर हमने देखा 12 to 15 माइक्रोन। प्लेटलेट्स आर वेरी स्मॉल 2 to 5 माइक्रोन।
तो बाद में आपको ऐसा कंपेरेटिव स्टडी करना होगा। इसमें आप डायमीटर, परसेंटेज, बाद में आप न्यूक्लियस के बारे में सोच सकते हैं। आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड। आरबीसीज जब फॉर्म होते हैं तो उनमें न्यूक्लियस रहता है, लेकिन जब वो मैच्योर होते हैं तो उनका न्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाता है। डब्ल्यूबीसीज आर न्यूक्लिएटेड सेल्स, अमीबॉइड सेल्स। डब्ल्यूबीसीज अमीबॉइड सेल देते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल देते हैं। प्लेटलेट्स आर नॉट अन्यूक्लिएटेड सेल्स। प्लेटलेट्स आर वेरी स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोट्स। तो इस तरह से आपको कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए। इनका न्यूक्लियस कैसा है, इनका परसेंटेज कैसा, उनके फंक्शंस कैसे रहते हैं। आरबीसीज के बारे में अगर देखा जाए तो आरबीसीज क्या फंक्शन करते हैं। आरबीसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम lungs to different cells and carrying the carbon dioxide from different cells to lungs. उसके बाद आरबीसीज के बाद अगर देखा जाए डब्ल्यूबीसीज को अगर देखा जाए, डब्ल्यूबीसीज के बहुत से फंक्शन हमें देखिए। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन। डब्ल्यूबीसीज आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फॉरेन सब्सटेंसेस। डब्ल्यूबीसीज आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलर्जिक कंडीशन। They are also important for protection of body from the pathogens here. So इस तरह से और बाद में हमने देखा प्लेटलेट्स के फंक्शन। तो प्लेटलेट के फंक्शंस हमने देखिए इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन। सो दिस प्लेटलेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन। नाउ इनकी जो प्रोसेस है फॉर्मेशन की, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड इरिथ्रोपायसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज is called leukopoiesis. The process of formation of platelets is called thrombopoiesis. तो इस तरह से इनके अलग अलग प्रोसेस को हम नाम दे सकते हैं। बाद में इनका नंबर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इनको भी हम कंपैरेटिवली याद रख सकते हैं। जैसे कि erythrocytosis, when WBCs are greater in number, that condition is called polycythemia. When RBCs are greater in number, that condition is called polycythemia. When WBCs are greater in number, that condition is called leukocytosis. So, or this when the platelets are greater in number, that condition is called thrombocytosis. When RBCs are less in number, that condition is called erythrocytopenia. When WBCs are less in number, that condition is called leukopenia. When platelets are less in number, that condition is called we can say that this thrombocytopenia. That means एक बार हमने टॉपिक वाइज स्टडी करने के बाद हम इनको कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं। अब जब आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको ये लर्निंग करने के लिए बहुत इजी जाएगा, बिकॉज दिस कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट एग्जामिनेशन। एंड सो इनके डायमेंशंस, इनके न्यूक्लियस है, अदर जो 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 कुछ भी हमने यहाँ पे देखा है वो आपको एकदम सीरियसली लर्न करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको ये जो नोट्स है इनका स्क्रीनशॉट निकाल के आप ये स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन टॉपिक में ब्लड कॉम्पोजिशन के बारे में हमने प्लाज्मा देखा और हमने ब्लड सेल देखे। अभी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ये जो लेसन है, इसमें बॉडी फ्लूइड्स का डिस्क्रिप्शन आपके एनिमल टिश्यू लेसन में दिया है एनसीईआरटी की बुक में। अभी सर्कुलेशन के बारे में अगर सोचा जाए तो सर्कुलेशन में हमको क्या देखना है। सर्कुलेशन में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन देखने हैं। सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये अलग अलग सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी सिस्टेमिक सर्कुलेशन नियर अबाउट 80% that means blood is present in the systemic circulation. So near about 12% blood is present in the pulmonary circulation. Near about 8% blood is present in the coronary circulation. तो सर्कुलेशन में ये तीन टाइप्स के अलावा हमको देखना है ओपन सर्कुलेशन, ओपन ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। अभी ओपन सर्कुलेशन क्या होता है? ओपन सर्कुलेशन, it is in this circulation the blood pressure is not maintained. In open circulation, capillaries and venules are absent, and so as capillaries and venules are absent, the blood flow is not maintained. In closed circulation, because of the presence of capillaries and venules, the blood pressure is maintained. In open circulation, the blood is directly contact with the cells, while in the closed circulation, the blood is never contact with the cells.
क्लोज सर्कुलेशन, सबसे पहले विलियम हार्वे ने क्लोज सर्कुलेशन डिस्कवर किया। तो ये जो क्लोज सर्कुलेशन है, क्लोज सर्कुलेशन में किसी भी सेल को कभी ब्लड सप्लाई होता नहीं। ब्लड सिर्फ सेल तक ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है, और सेल में जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करने का काम ब्लड करता है। और ये जो काम करता है ब्लड और सेल्स, इसके बीच में टिश्यू फ्लूइड होते हैं, और ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है, ये टिश्यू फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ। सो लिम्फ, इट इज नथिंग बट इट इज द कलरलेस फ्लूइड इन विच द cells of tissue bath. Lymph, it is the middleman between blood and tissue. Blood और tissue के बीच में middleman जो रहता है lymph रहता है। Lymph is very important one. The lymph is similar to the plasma. The composition of lymph is similar to the plasma, except in lymph platelets are absent, some plasma proteins are absent. Lymph में platelets absent रहते हैं, plasma proteins absent रहते हैं। So this lymph, ये lymph का रोल क्या है? Lymph is carried by lymphatic vessels. Lymph, it is produced by lymph node, it is produced by Peyer's patches, it is produced by that means the thymus gland, tonsils, ये सबसे lymph प्रोड्यूस होता है। और ये जो lymph होता है, इसका सबसे मेन रोल क्या होता है? जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है तो उस टाइम पे ये lymph जो है, ये lymph ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में एंट्री करता है फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड, and it maintains the blood volume, it maintains the blood pressure. So these lymphatic capillaries, lymphatic vessels, lymph node and lymph. So lymph is a colorless fluid. Lymph nodes, it is very important for formation of lymphocytes. Lymphocytes का रोल हमने देखा है। Lymphocytes are very important for formation of antibodies. मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि one plasma cell can produce about 2000 antibodies. Antibodies are very important for our immune system. तो ये lymph जो रहता है, ये lymph capillaries में से lymphatic vessel में आता है, और फिर lymphatic vessel में वो carry हो जाता है। So there are two types of lymphatic vessel, right lymphatic vessel and left lymphatic vessel. Left lymphatic vessel is also called as a thoracic duct. It is the main collecting duct. आपने intestine में intestine में जो some fats रहते हैं, उनको जो lymph vessel कैरी करते हैं वो मिल्की रहती है अपीयरेंस में, इसको हम बोलते हैं लैक्टियल्स। तो ये lymph और ये ब्लड, ये दोनों मिलके ये बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि ये दोनों बॉडी फ्लूइड्स मिलके अपने हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करते हैं। हर एक सेल में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको कलेक्ट करने का काम करते हैं, ब्लड तक देते हैं। ब्लड वो वेस्ट मटेरियल को फिर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरफ पहुंचाता है, फिर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो सिस्टम है अपने बॉडी के अंदर, ये अपने सर्वाइवल के लिए बहुत इसेंशियल है। इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को एक लाइफलाइन सिस्टम कहा गया है। व्हाई? बिकॉज आवर लाइफ इज ऑलवेज डिपेंड ऑन दिस सिस्टम। Because if cell get nutrient, if cell get oxygen, then and then energy will be produced. If energy will be produced, then and then we can able to perform any kind of work. Without energy, we cannot perform any type of work. Again, in our cells, different waste materials are extracted, collected, and they are removed from the body. Our body is always made clean, and all these functions, they are very important, and all these functions are carried by body fluids. तो ये जो लेसन है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसमें बॉडी फ्लूइड टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। और सर्कुलेशन में हमने इंट्रोडक्शन लिया, जिसमें हमने देखा ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। तो ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड इज डायरेक्टली कांटेक्ट विद द सेल्स, ब्लड सेल से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, मींस बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज। बट इन द क्लोज सर्कुलेशन ब्लड इज नेवर कांटेक्ट विद द सेल्स, बिकॉज in the closed circulation the blood flows through the blood vessels from heart to aorta, aorta to artery, artery to arteriole, arteriole to capillary, capillary to venule, venule to vein, vein to again vena cava and vena cava to heart। तो ये कंप्लीट जो फ्लो है ब्लड का, ये एक ब्लड वेसल में से दूसरे ब्लड वेसल में जाता है, और जब ये कैपिलरीज में रहता है तो कैपिलरीज में से फिर कैपिलरीज आर पोरस इन नेचर, तो ये कैपिलरीज में से न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन सेल्स को दिए जाते हैं, और सेल्स में से वेस्ट मटेरियल कलेक्ट किया जाता है और फिर वो ब्लड में एंट्री करता है।
बट ब्लड कभी सेल में एंटर नहीं करता, इसमें क्लोज सर्कुलेशन में. इन ओपन सर्कुलेशन ब्लड इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द सेल एंड एज अ रिजल्ट as blood is directly contact with the cell, the blood pressure is very less, the blood pressure is low, blood pressure is not maintained. So we know that in the arthropods, in arthropods and mollusks, there is open circulatory system, and in vertebrates here there is a closed circulatory system. तो closed circulatory system में हम vertebrates में हम अगर देखा जाए तो closed circulatory system में इसमें हमको देखना है हार्ट. अभी फिशेस के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इनवर्टिब्रेट के बारे में देखा जाए तो इनवर्टिब्रेट में सिर्फ एनिलिडा फाइलम में, ऑर्थोपोडा फाइलम में अगर देखा जाए तो इसमें कॉकरोच में देखा जाए तो 13 चेम्बर्ड हार्ट रहता है. हार्ट इज 13 चेम्बर इन कॉकरोच, हार्ट इज 2 चेम्बर्ड इन फिशेस, हार्ट इज 3 चेम्बर्ड इन एम्फीबियंस, हार्ट इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड 4 चेम्बर इन reptiles, and heart is completely divided 4 chamber in birds and in mammals. तो इस तरह से हार्ट डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट टाइप्स का होता है. 1 चेम्बर हार्ट, 2 चेम्बर हार्ट, 3.5 चेम्बर हार्ट, 4 चेम्बर हार्ट. और फिशेस का जो हार्ट 2 चेम्बर रहता है इसमें एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल रहता है, इसलिए इसको वेनस हार्ट बोलते हैं. वेनस हार्ट इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस हार्ट ओनली पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है. और फिर we know that in the fishes the blood oxygenation occur in the gills, and so that fishes they have venous heart. If fishes venous heart इनमें venous heart रहता है, यानी कि one auricle to one ventricle. एम्फीबियन के हार्ट पे देखा जाए तो उसमें 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल. इसको हम मिक्स्ड हार्ट बोल सकते हैं. ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन द राइट ऑरिकल deoxygenated blood comes, in the left auricle oxygenated blood comes, and both the types of blood enter into the one ventricle, and where it is mixed. तो इसको हम बोल सकते हैं मिक्स्ड हार्ट. तो आप सोचेंगे कि सर ये मिक्स हार्ट है, इसमें ब्लड मिक्स हो जाता है, फिर भी फ्रॉग के ब्रेन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे पहुंचेगा? तो इसमें भी विलियम हार्वे ने बताया कि ये जो मिक्स हार्ट है इसमें पहला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले सप्लाई किया जाता है, बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होता है. तो ये 2-3 चेम्बर हार्ट हो गया फ्रॉग के बारे में. और रेप्टाइल्स के बारे में अगर देखा जाए तो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड. इन रेप्टाइल्स का हार्ट अगर देखा जाए तो रेप्टाइल्स में ऑरिकल्स डिवाइडेड होते हैं कंप्लीटली. सपोज दैट हियर दिस इज द रेप्टाइल्स हार्ट. तो ये ऑरिकल जो है, ये ऑरिकल्स का डिवीजन कंप्लीट है, कंप्लीट है यहाँ पे. लेकिन वेंट्रिकल जो है ये इनकम्प्लीट डिवाइड होता है इनका. लुक एट दिस वेंट्रिकल्स. तो वेंट्रिकल्स का कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है, इसको हम रेप्टाइल्स का हार्ट बोलते हैं. सो दिस in the human their heart is completely 4 chamber. अभी ह्यूमन का हार्ट देखा जाए तो ये completely 4 chamber हार्ट है. Here this is the human heart, completely 4 chamber heart. So this heart, it is very important organ for the circulation because it pumps the blood, and as it pumps the blood is drawn from the heart to the different body parts, and from different body parts it is again brought into the heart. When it is brought to the different body parts and into the heart, this circulation is called systemic circulation. When the blood is carried from heart to the lungs and back to the heart, it is called pulmonary circulation. And when the blood is provided from heart muscles to heart, and again heart to heart muscle, this is called coronary circulation. तो ये जो नाम दिए गए coronary circulation, pulmonary circulation, systemic circulation, ये नाम अकॉर्डिंग टू उनके ऑर्गन्स दिए गए हैं. अभी देखो हार्ट मसल से हार्ट जब ब्लड हार्ट मसल को सप्लाई करेगा तो उनको हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन. व्हाई? बिकॉज द कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स दे आर इंपॉर्टेंट फॉर दैट सर्कुलेशन. हार्ट से ब्लड जब लंग्स तक जाएगा तो लंग्स तक जाने के बाद लंग्स को पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कैरी करेगी डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजेनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो जब और तीसरा जो है सिस्टेमिक, तो इसमें ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट. तो सबसे ज्यादा ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कैरी किया जाता है. उसके बाद यानी कि 80%, 12% पल्मोनरी सर्कुलेशन में और 8% ब्लड जो है वो हार्ट में रहता है. सो दैट मीन्स कोरोनरी सर्कुलेशन में. तो इस तरह से हम हार्ट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम देख सकते हैं. तो आज हमारा बॉडी फ्लूइड्स और बॉडी फ्लूइड के बारे में डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हुआ, हार्ट का इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हुआ. कल हम देखेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है,
हार्ट के पार्ट्स कैसे होते हैं, उनके फंक्शंस कैसे होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये सब टॉपिक लर्न करना बहुत इसेंशियल है। जो लोगों ने इसके पहले लेक्चर अटेंड नहीं किए उन्होंने चैनल पे जाके वो लेक्चर पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आप उसको लाइक कमेंट भी दीजिए। आपके कमेंट्स हमको बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप जितने कमेंट देंगे उतना हमारा हम ज़्यादा एनर्जेटिक रह सकते हैं आपको गाइडेंस करने के लिए। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, बाकी पार्ट हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।